Hello, my dear student. This is Abhisek here. Actually, some students request me to make a video on the chapter area, perimeter, and volume so that they can do their last revision very well. That's the reason I'm trying to make a video for you. So let's get started. First, we will learn what is perimeter. Perimeter is the total length of a closed, और यू कैन से पेरीमीटर इज द बाउंड्री. ये जो टोटल लेंथ होता है इसी को हम बाउंड्री कहते हैं. एक क्लोज्ड शेप, सपोज कोई भी क्लोज्ड शेप मैंने ले लिया तो उसका जो बाउंड्री होता है वही होता है पेरीमीटर. सो इन शॉर्ट वी कैन से पेरीमीटर इज अ बेसिकली बाउंड्री. So let's take some of the shape so that it will be easier for you to understand. So first what I have taken a rectangle. See, देखो, in case of perimeter you don't need to remember any formula. What you have to do, you just have to add all the sides of a given shape, all the sides of a given shape. Suppose सपोज ये एक पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क. दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क. ये शेप देख के तो पता चल गया ये एक रेक्टेंगल है. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क. सो द पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क विल बी द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस along द बाउंड्री. यहां से अगर हम वॉकिंग स्टार्ट करें तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे फिर से वहीं पे आना पड़ेगा. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द फिगर. सी, इन केस ऑफ ए रेक्टेंगल the longer side is generally known as length and which is denoted by the symbol L, and the shorter side generally known as breadth, which is denoted by the symbol B. Now for a rectangle the opposite sides are always equal. That means AB, ये जो side है AB और इसका opposite में जो side है DC, ये दो side equal है. That means both the lengths are equal. At the same time ये जो breadth होगा वो भी equal है. So what we have to find? We have to find the boundary. Now, if I start from A, you always have to make sure that the starting point and finishing point will be always same. If I start from point A, after walking whole the distance, I have to again stop at point A. That will be our perimeter. So I am just simply writing. So perimeter of AB, the distance AB first we have to cover. Then BC, I'm just adding all the sides. You don't need to remember any formula. Just add करो. जितना side है कोई भी shape का वो side को add करो, बस हो जाएगा. Perimeter तो BC हो गया. अब C से D तक तो CD, again D से A तक. देखो AB को हमने क्या लिया, लेंथ है AB और ये जो DC है दोनों लेंथ है, दोनों सेम है. तो मैं just I'm writing L instead of AB. BC is B. CD हाँ again लेंथ, उसके बाद फिर B. अब देखो L कितना है, 2 है तो 2L plus 2B. So if I take 2 as common, the formula perimeter of a rectangle will be 2 into length plus breadth. You don't need to remember this formula. देखो अगर तुमको याद है तो that's fine. The perimeter of a rectangle is 2 into length plus breadth. If you are not able to memorize this formula, simply add करो जितना side दिया रहेगा. Unit of the perimeter will be same as the given unit. Now see, if if the length is 8 meter, suppose I am taking here length is given of a rectangular part
For a rectangular park, length is given as 8 meter and breadth is also given as let's take 4 meter. See here the unit is meter and meter. Both the unit are same. We don't need to convert anything. अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर से ही आएगा यूनिट. So what will be happen in case of this? What we have to do? We have to just add it. Length के लिए 8 plus breadth के लिए 4 plus फिर से 8 plus 4. So 8 plus 4 12. 8 plus 4 12. Yeah. Unit क्या रहेगा? मीटर. As I told you, as I am adding all the length, so the unit will be same as the given unit. कोई भी पावर नहीं रहेगा, मतलब इसका पावर होगा 1. 24 meter. Now if I can memorize this formula, at the same time the same value will come. See, इधर देखो, लेंथ के लिए मैंने क्या पुट किया? 8 और ब्रेथ के लिए 4. इधर यूनिट लिख लो मीटर. So 2 into 8 plus 4 कितना होता है? 12 and this will be 24 meter. Done. So I am telling you repeatedly, if you are able to memorize this formula for a rectangle, you can write it. Else just add करो. Perimeter के लिए कोई भी formula, you don't need to remember any formula in case of a perimeter for any kind of shape. सर्कल के लिए अलग है. सर्कल के लिए उसका जो पेरीमीटर होता है वही सर्कमफेरेंस होता है. दैट इज डिफरेंट थिंग. वो छोड़ दो. स्क्वायर का निकालते हैं. स्क्वायर स्क्वायर का क्या होगा देखते हैं. चलो. तो इन केस ऑफ ए स्क्वायर all the sides are equal. This is a square. See, for a square all the sides are equal. जितना साइड है सब इक्वल है. Now if the given side, suppose side, if I denote side as symbol A, is given as 6 meter. So what will be the perimeter? Simple. I have to add it. I have to add all the side. Perimeter equals to कितना है? Side plus side plus side. अच्छा, ये मैं नीचे नहीं लिखूंगा. Plus side. That means कितना साइड मैंने लिया? 4 साइड को ऐड करना पड़ेगा. That's why I am doing 4 into side. देखो, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला फॉर स्क्वायर इज 4 into साइड. आ गया. तो इधर साइड कितना दिया हुआ है? इधर साइड इज गिवन एज 6 मीटर. सो जस्ट 4 into 6 मीटर 24 मीटर. 6 मतलब 4 बार 6 को ऐड कर लो 24 मीटर आएगा. ये हो गया पेरीमीटर. अगर ट्रायंगल होगा तो उसके लिए भी सेम थिंग वी हैव टू डू. Triangle, how many sides are there? In case of a triangle, there are 3 sides. You don't need to memorize any formula. Again, I am telling you. Suppose one side is A equals to 5 meter, B equals to 6 meter, and C, another side, is equals to 4 meter. So what will be the area? So what will be the perimeter? Sorry, the perimeter will be just you have to add all the sides. A plus B plus C. देखो A, ये जो ए बी साइड है इसको हम A से डिनोट किया. तो 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 4 मीटर. यू जस्ट नीड टू ऐड ऑल द साइड्स और यूनिट जो रहेगा उसी को पुट कर दो. अगर तो देखो पेरीमीटर के लिए क्या लिखना है? पेरीमीटर के लिए बस यू जस्ट नीड टू ऐड ऑल द साइड्स एंड द गिवन यूनिट, मतलब साइड का जो यूनिट रहेगा. बट बिफोर एडिंग ऑल द साइड्स यू हैव टू मेक श्योर that all the sides are in same unit. That means अगर लेंथ समझो कि लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 2 और 20 सेंटीमीटर. So I can't add 20 सेंटीमीटर और मीटर. In that case I have to convert 2 मीटर into 200 सेंटीमीटर. दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ऐड करो. जो गिवन यूनिट दिया रहेगा वही यूनिट रहेगा in case of a perimeter. So let's solve some of the questions here. What I can see is that
देखो ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, और अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा दैट यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। देखो एक क्वेश्चन, हम लोगों ने तो पूरा एक्सरसाइज, मतलब वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज। ये जो रिवीजन मैं कर रहा हूँ, ये जो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो बस कॉन्सेप्ट को फिर से लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इधर देखो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का अच्छा एक पेरीमीटर ये है, और ब्रेथ इसका तो एरिया एक रेक्टेंगल, हाँ ये भी और पेरीमीटर का है, और ये एक है। चलो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द क्वेश्चन हियर? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का एक ही साइड, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल फॉर ए स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट वी नो, वी जस्ट नीड टू ऐड ऑल द साइड्स। तो कितना साइड होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का कितना साइड होता है? 4 साइड होता है। तो चारों साइड को अगर हम ऐड करें, सो वी कैन इजीली राइट 4 इंटू, ऐड करना है 4 साइड को, तो 4 साइड को ऐड करो। 4 साइड को अगर ऐड करें तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है चलो, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, अच्छा एक इधर लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। तो 4 साइड को हमने ऐड किया, तो 4 बार 8 है, तो 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर is the perimeter of this square. Done. Next. अच्छा, a rectangular garden 30 meter long and 18 meter wide. तो एक गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन लॉन्ग 30 मीटर, तो लेंथ इज गिवन एज 30 मीटर एंड breadth is given as 18 meter. So B here is 18 meter. It's a rectangular garden and find its perimeter. Okay, rectangular garden is 30 meter and long. Okay, so find its perimeter. चलो ये भी निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये भी 30 मीटर होगा, ये भी ये भी इक्वल है, मतलब ये भी 18 मीटर होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर पेरीमीटर, वी हैव टू जस्ट ऐड ऑल द साइड्स, 30 मीटर प्लस 18 मीटर, अगेन 30 मीटर प्लस 18 मीटर। मैं कह रहा हूँ जिसको फॉर्मूला है, याद है, वो फॉर्मूला से करो, जिसको याद नहीं है और करने का भी जरूरत नहीं है, वो बस ऐड कर दो। 30 प्लस 30 60 होता है, 18 मीटर प्लस 18 मीटर 36 होता है, सो द वैल्यू विल बी 96 मीटर। देखो यही अगर हम फॉर्मूला से निकाले ना, सेम वैल्यू आएगा, टेंशन का कोई बात ही नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इधर लेंथ क्या है? इधर लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ है 18 मीटर। 30 plus 18, how much? 48. So 48 meter into 2, what will be the value? 96 meter. इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसी में ब्रैकेट चला जाएगा और मल्टीप्लिकेशन रहेगा। 96 meter is the answer. Hope it's clear to you. And the last question, what we can say that find it's a triangle having side 9 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter. At the same time also we have to add all the sides. ये भी कर लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसको छोड़ दो, ये वाला रब कर देते हैं। देखो द गिवन यूनिट विल बी द यूनिट ऑफ द आंसर, मतलब पेरीमीटर का जो यूनिट होगा हमेशा वो गिवन यूनिट रहेगा, और यू हैव टू राइट द यूनिट। इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा तुमको। और बिकॉज द साइड इज गिवन यूनिट, यूनिट तो चाहिए ना। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेगा? यूनिट लिखना है हमेशा। सी द साइड्स आर गिवन एज 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13, सो जस्ट आई एम राइटिंग 9 सेंटीमीटर। अच्छा इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हाँ ऐसा होगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल हो गया था, नहीं आइसोस के लिए हो गया था इसलिए। अच्छा चलो, तो साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, सपोज दिस साइड्स इज 9 सेंटीमीटर, ये वाला 11 होगा। नाउ ये जस्टिफाइड है फिगर, सो ऐड कर दो। पिछले बार तो दूसरा एक लेके ट्रायंगल का शेप लेके मैंने किया था, तो अभी नया ले लेते हैं। तो फॉर पेरीमीटर जस्ट ऐड ऑल द साइड्स, 11 प्लस 9 होता है 20, 20 प्लस 13 होता है 33 सेंटीमीटर। दैट्स द यूनिट, दैट्स द आंसर। डन। चलो, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। एरिया क्या है? एरिया मीन्स जो बाउंड्री मैंने
पिछले पेरीमीटर में द बाउंड्री, द वैल्यू ऑफ बाउंड्री दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट, द वैल्यू ऑफ बाउंड्री, तो वो था पेरीमीटर। अभी वो बाउंड्री के अंदर जो जगह है, जो स्पेस है बाउंड्री के अंदर, वही होता है एरिया। एरिया मीन्स स्पेस इनसाइड द शेप। इनसाइड, बाउंड्री हमेशा आउटसाइड होता है। आउटसाइड का जो पूरा मतलब जो लेंथ होगा पूरा कितना है आउटसाइड, वो होता है पेरीमीटर। और एरिया इनसाइड द शेप, लाइक अगर ये पूरा एक फ्लोर होता, अगर ये समझो एक फ्लोर है, कोई भी घर का एक फ्लोर है, अगर इसमें हम छोटा छोटा करके कुछ टाइल्स हम पुट करें, ये टाइल्स है, सो जितना स्पेस ये लिया ना, ये जितना स्पेस लिया यही होता है एरिया। मतलब इधर कितना टाइल्स आएगा ये फाइंड आउट करना है। ओके, देखो ये पेरीमीटर और एरिया, ये दोनों जो शेप है ना, बोथ द शेप्स आर वी आर टेकिंग इन 2D फॉर्म। 2D मतलब दो ही डायमेंशन इधर है, एक है लेंथ एक है ब्रेथ। स्क्वायर के लिए बस एक साइड दिया रहेगा, और बाकी रेक्टेंगल, ट्राइंगल इसके लिए, और ट्राइंगल के लिए ऑल द साइड्स, फॉर रेक्टेंगल के लिए दोनों साइड दिया रहेगा। ये देखो ये 2D शेप में है, ये 3D नहीं है। 2D मतलब एक ही प्लेन में वट एवर वी आर ड्रॉइंग, वट एवर वी आर राइटिंग ऑन द सेम प्लेन, यही 2D होता है। ठीक है, दीज आर 2D शेप्स। और पेरीमीटर, अच्छा फिर छोड़ो, एरिया का जो यूनिट होगा ना, अगर सेंटीमीटर में साइड रहेगा तो इसका स्क्वायर होगा, अगर मीटर में रहेगा तो स्क्वायर में होगा। इसका पावर हमेशा 2 होगा। देखो पेरीमीटर में कोई भी यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, एरिया में मैं बस ये मतलब मेमोराइज करने के लिए पावर में 2 लिख रहा हूँ। मतलब वट एवर द गिवन यूनिट, यू जस्ट नीड टू स्क्वायर इट। जो भी गिवन डेटा दिया रहेगा, गिवन डेटा में जो यूनिट रहेगा उसी यूनिट का स्क्वायर करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया, यू विल गेट द यूनिट ऑफ एरिया। ओके, तो लेट्स टेक सम शेप। फिर से चलो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो क्या करना है एरिया के लिए, क्या करना है, ये फॉर्मूला तुमको याद करना है, एक ही फॉर्मूला तुमको याद करना है, तो पूरा चल जाएगा, पूरा चल जाएगा। कोई भी शेप तुम ले लो हो जाएगा। ए बी सी डी, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। इसका जो लेंथ है सपोज इट्स 6 मीटर। देखो लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट तो पहले ही, मतलब पेरीमीटर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेरीमीटर दैट वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज लेंथ व्हाट इज ब्रेथ। चारों साइड होता है कोई भी, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर में चारों साइड होता है। फॉर रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन फॉर स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इधर लेंथ हुआ 6 मीटर और इधर बी वी हैव टेकन सपोज 2 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, देखो इन केस ऑफ रेक्टेंगल वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 6 मीटर 2 मीटर मल्टीप्लाई करें, देखो 6 मीटर का मतलब क्या है, इधर एक नंबर है और इधर एक लेटर है, ये दोनों आपस में कभी ऐड नहीं होता है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है। 6 इंटू मीटर, यही होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मतलब ये जो 6 और मीटर है ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ही है, मतलब चारों के चारों है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो जो नंबर है वो नंबर से मल्टीप्लाई करो 12 है आएगा, और जो लेटर है वो लेटर से मल्टीप्लाई करो, एम इंटू एम सेम लेटर है तो इसलिए स्क्वायर हुआ 12 मीटर स्क्वायर। ये चीज अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो रटने का बात हुआ तो एरिया में पावर हमेशा स्क्वायर होगा, जो भी गिवन यूनिट रहेगा। इधर मीटर है तो इतना याद करो एरिया ने, इन केस ऑफ एरिया सर ने बोला जो गिवन यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर लिखना है, बस इतना ही काफी है। बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, कोशिश करना है बस। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका एरिया निकालना है, तो चलो ये सॉल्व कर लेते हैं अभी यही। ये गार्डन का लेंथ, सी द लेट अस राइट फर्स्ट द गिवन डेटा, लेंथ इज गिवन एज 30 मीटर, एंड वाइड मतलब ब्रेथ है, कितना चौड़ा है, तो 18 मीटर। नाउ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 मीटर इंटू 18 मीटर, 3 18 54, एंड उसके बाद जीरो रहेगा। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया, देखो 3 से 18 को मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू 3 होता है 54, उसके बाद एक जीरो है तो इधर भी मैंने, इधर भी जीरो लगाया इधर भी जीरो लगाया, बस खेल खत्म। चलो मीटर स्क्वायर डन। तो इसका जो एरिया होगा वो 5540 मीटर स्क्वायर है। और कुछ एरिया है, अच्छा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है, समझ लेते हैं। चलो एक रेक्टेंगल का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है। लेट्स सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल द डेटा,
देखो लेंथ क्या है, लेंथ है 24 मीटर लिख लेते हैं। अच्छा, तो एरिया ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ, ये निकालना है हमें। और एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, ये ब्रेथ को हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम नीचे ले लेते हैं। ब्रेथ फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ को निकालें तो इट विल बी डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब एरिया विल बी डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इधर जो गिवन डेटा है उसको पुट कर लो, हो जाएगा। देखो एरिया क्या है, 480 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, इसीलिए तो मीटर स्क्वायर हुआ था ना। मीटर इंटू मीटर है तभी तो स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर तभी स्क्वायर है, मतलब 2 मीटर मल्टीप्लाई किया था तब स्क्वायर आया। ठीक है। और लेंथ का क्या है, लेंथ का है 24 मीटर, एक ही है। तो अगर हम मीटर स्क्वायर को ऐसे लिखे एम इंटू एम, तो ये 1 मीटर ये और 1 मीटर ये दोनों आपस में कट जाएगा, एक ही बचा रहेगा। और ब्रेथ का भी यूनिट हमेशा सिंगल यूनिट रहता है, कोई भी लेंथ और ब्रेथ का हमेशा सिंगल यूनिट रहता है। तो इसको आप डिवाइड कर दो 24, ये 20 आएगा। इसको हम अगर लिखेंगे तो 20, तो इसका ब्रेथ होगा 20 मीटर। डन। ठीक है, ये तो एरिया मतलब रेक्टेंगल का हो गया। अभी हम स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर के मतलब स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का बस ऑल द साइड्स आर सेम। फॉर स्क्वायर ऑल द साइड्स आर सेम। तो साइड अगर सेम रहेगा, देखो इसका हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया था। तो इधर भी साइड अगर ये होगा, एक लेंथ कंसीडर कर लेते हैं और ब्रेथ भी सेम साइड का होगा, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, क्या होगा, साइड इंटू साइड। मतलब तुमको बस ये याद, जो भी गिवन डेटा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ भी सेम है, स्क्वायर है, इसलिए हमेशा स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू।